Namaskar. Welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran. Today we are in conversation with Dr. Gandhi about National Disaster Response Force, Saving Lives and Beyond, Apada Seva Sadaiv Sarvatra. Our guest, Dr. Hariom Gandhi, is the director of the NDRF Academy at Nagpur. A very warm welcome to you, sir, and thank you for joining us. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It's a pleasure to have you here. A word about Arunim Ankuran. Arunim Ankuran is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact, and that's what inspires us to keep going. And that's why we keep sharing stories of change makers, of change agents, of leaders who are making a better world. The NDRF is a specialized force for disaster management and relief operations in India. The NDRF comprises battalions drawn from the CAPF, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, Assam Rifles. Each battalion is composed of self-sufficient specialized search and rescue teams encompassing structural engineers, technicians, electricians, canine units, and medical paramedic personnel. All units are proficiently equipped and trained to handle any type of natural and man-made disasters. Today, the NDRF stands as a distinguished and dependable force within India. With its unwavering commitment to disaster response and preparedness, the force continues to serve as a beacon of hope and resilience in the face of adversity. The NDRF has continually demonstrated expertise and compassion in handling various disaster scenarios, earning the trust and gratitude of millions. So to have the director of the NDRF Academy with us today is an honor and privilege for us. Once again, thank you so much for taking time out and talking to us. I think we would like you to share how you came to be where you are now, your journey so far. Yes. Yeah, I come from Rajasthan basically, and I joined the government service through 1995 civil services exam and allotted CISF. In CISF units, I have worked in the BCCL Dhanbad, that is a coal mine area. I have served in 3 airports, Bangalore Airport, Mangalore Airport, and Goa airports. And I have served in Kashmir, in NHPC Uri and Dulassi Hydroelectric Power Project and battalion there. In 2011 to 2018, I was on deputation to Narcotics Control Bureau as Zonal Director, Narcotics Control Bureau for Gujarat, Daman and Diu, and 1 year for Maharashtra and Goa. Post my this deputation, I came back to CISF, served in Jamshedpur, that is Jadugoda, Uranium Corporation Limited for 3 years. Came to Delhi, worked there for 2 years. Then on my promotion, I went to Kolkata as a DIG East and Northeast airports. And from November, I am on deputation to NDRF. Right now, I am looking after the charge of Director NDRF Academy Nagpur, and at the same time, South and South Central Zone of NDRF battalions in Chennai. That's wonderful. So, bringing me here is basically something what we can do for the people. What can we find? How we can find a solution basically. The motto of NDRF always attracts me. Apada Seva Sadaiv and Sarvatra. Yes. And saving lives and beyond. And beyond is very, very critical. That means it is not only response, it is going beyond the response. Yes, absolutely. So, could you tell us a little more about the NDRF, its role, and since you're at the academy, what is the training of the officers like? Because as civilians, I think most of the citizens admire and respect the NDRF,
And I'm sure they would be interested to know what goes on before the personnel are ready to be in the field. Anybody who joined the NDRF has to go compulsory 17-week BFRC course, Basic First Responder course. And this Basic First Responder course, yes, anybody who joined the NDRF, they have to go a mandatory training for the 17-week. Officers are supposed to come to the academy, and the men, Jawan, and the SOs, they do their training at the respective battalions. But this training is mandatory, and they are supposed to successfully pass this course. Only then they continue in this course. Yes. And the component of this training are like CBRN, chemical, biological, radiological, and nuclear. Then floodwater rescue, CSSR, that is collapsible structure search and rescue, tunnel rescue, medical first responder course. So all these modules, they are supposed to clear successfully. And what are some of the challenges the participants must be facing during this training? Participant, basically for all the participants, they are coming from the various forces like ITBP, CRPF, CISF, and Assam Rifle, SSB. For them, हम लोग बोलते हैं एक गोली एक दुश्मन. वहां पर सामने आपकी दुश्मनी है, वेदर इसे टेररिस्ट, अदर इसे सीमा पार दूसरा आदमी है. अगर बीएसएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और किसी भी फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द मैन ओनली. But when they come here, it's a total attitudinal change. They are not fighting the war. They are not fighting the enemy. But यहाँ पर they are here for relief, rescue और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हैं. So first is the entire mind change is there. वो सॉफ्टवेयर में चेंज एक जरूरी है उनके. Then second part is the skill. और ये सारी स्किल ऐसी हैं जो कि उन्होंने पहले सीखी नहीं होती हैं, थोड़े थोड़े लेवल पे सीखी होती होंगी, बट स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं होती. बिकॉज इफ एनी बिल्डिंग कोलैप्स या कुछ टनल कोलैप्स हो जाए, ब्रिज गिर जाए, तो वहां आपको इमीडिएटली पहुंच के लोगों को सहायता देनी है और आपको अपने काम के अंदर इतना मास्टरी होना है कि आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकें और लोगों की जान जल्दी से जल्दी बचा सकें. जिससे कि गोल्डन आवर, हम लोग बोलते हैं ना गोल्डन आवर, अगर आपने डिले कर दिया तो पर्सन इज गॉन. सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग कि हम लोग प्रिसीजन के साथ में पावरफुल तरीके से रिस्पॉन्ड करके इमीडिएटली हम लोग उस जगह को सेव करें और लोगों को निकालें. दैट इज द बैकग्राउंड. So this major shift, I think that must be very challenging. What you said ना कि एक दुश्मन एक गोली. तो ये जो 17 weeks का ड्यूरेशन है, इसमें कितनी, how many hours, let's say, कितना, I want the common citizen to understand कि बहुत मेहनत करते हैं, you know, it's a lot of hard work that goes on behind the rescues that we just see on television. अभी आप देखें तो हम लोगों के यहाँ 9 पीरियड होते हैं. मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग दे आर बिजी. अर्ली मॉर्निंग भी उनको प्रैक्टिस के लिए जाना है. एंड इट्स अ मंडे टू सैटरडे का होल डेज का रूटीन है. सो दे हार्डली गेट एनी टाइम. उसके बाद में रूम में जाके उनको अपने एग्जाम्स की बाकी की प्रैक्टिस करनी है. सो इनको देखा जाए तो प्रॉपरली सोने का टाइम भी नहीं मिलता है. So it's a rigorous routine, but one thing is there. Initially they complain a lot कि अरे भाई हम लोग फोर्सेस से आ रहे हैं, हम लोगों को आता है, ये सारी चीजें हमारे पे क्यों ज्यादा इतना मेहनत करवा रहे हैं. बट स्लोली स्लोली दे रियलाइज कि नहीं ये जरूरी है. और जब कोर्स कंप्लीट होता है देन दे रियलाइज नो इट वाज वर्थ इट. क्योंकि फील्ड में जब आप काम कर रहे हो और जवान के साथ में आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, आपको भी पता है कि उस काम को किस तरीके से किए जाना है. क्योंकि दीज आर द स्पेशलाइज्ड टास्क बेसिकली, जो कि मैन को भी पता होने चाहिए. मैन तो खैर कर ही रहा है, जवान तो कर ही रहा है, लेकिन ऑफिसर भी रिस्पॉन्ड करने के लिए इक्वली एक्विप्ड है उस समय. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. So there is physical fitness, then there is also the psychological dimension, and of course the knowledge aspect. फिजिकल फिटनेस तो इज वेरी वेरी क्रिटिकल. ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस में जहां हम उन लोगों को फ्लड वाटर रेस्क्यू और ये सारे कोर्सेज कराते हैं,
तो उनके रिग्रेस टेस्ट है बेसिकली। जहाँ रोप रेस्क्यू वाला पार्ट है तो उनको भी को टावर पे चढ़ना होता है और वहां से रोप रेस्क्यू करके निकालना होता है। ये सारे जो वर्क हैं स्किल बेस्ड टेस्ट हैं, इट इज नॉट थियोरिटिकल कि उन्होंने एग्जाम लिखा और पास हो गए। ये जितने भी मैंने नाम बताए आपको, CSSR, वेदर से MFR, flood water rescue, CBR, and everywhere it is a skill based. They have to qualify all these tests. उसके बाद में फिर उन लोगों को फर्दर और कोर्सेज कराते थे हम लोग, स्पेशलाइज कोर्स, TOT कोर्स, मास्टर्स कोर्स, देन दे गो एट द डिफरेंट प्लेसेस। सो द जर्नी ऑफ ट्रेनिंग डजंट स्टॉप कि आपने 17 वीक का एक बार कोर्स कर लिया उसके बाद आपको कुछ नहीं होना है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहूंगा जरूर कि सर। हाउ दीज कोर्स आर हेल्पफुल। एक जवान हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके गया था, दैट इज फ्लड वाटर रेस्क्यू की ट्रेनिंग करके गया था। एंड ही वाज गोइंग टू गाजियाबाद के पास में घर था, अपने किसी रिलेटिव को उसको पैसा देना था, हु वाज हॉस्पिटलाइज। तो रास्ते में वो देखता है कि एक नहर के पास में काफी भीड़ हो रही है, पब्लिक खड़ी हुई है काफी। तो गया वो भीड़ के पास में, देखा क्या हो रहा है। तो ही वॉज टोल्ड कि गणेश विसर्जन के दौरान कुछ युवा लोग जो थे वो नहर के अंदर उस दौरान डूब गए, और उनको बचाने के लिए जो लोग जा रहे हैं वो भी डूबते जा रहे हैं। सो नाउ प्रशासन के लोग जो वहां पर आ गए वो बोल रहे हैं कि भाई आप कोई भी मत जाओ, नहीं तो बाकी के लोग भी मर जाएंगे। तो इस लड़के ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं इस तरह से ट्रेनिंग करके आया हूँ, NDRF का जवान हूँ, मेरे को मौका दो थोड़ा सा। तो लोगों ने बोला ठीक है चले जाओ। इसके पास में 50,000 रुपए, तो उसने अपने 50,000 रुपए कपड़े वगैरह साइड से रखे और सीधा जंप लगाई। जैसे ये गया पानी में तो तुरंत इसको भी बाकी के लोग जो तभी डूबे हुए थे और कुछ हल्के मतलब उनकी लाइफ अंदर थी उनके, तो उन्होंने इसको पकड़ के खींच लिया। तो किसी तरह से ये ऊपर आया, और जब ऊपर आया तो बाकी लोग बोले कि भाई अब तुम ऐसा है चुपचाप से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम भी चले जाओगे। लेकिन ये बोलता है कि नहीं सर, मेरा मन नहीं माना, तो मैं नहर के दूसरी पार पुल पे गया, वहां से मैंने जंप लगाई। बोले जब मैंने जंप लगाई तो भीड़ ने आवाज लगाई कि भाई ये तो 17वां भी गया। सो बोलता है मैं नीचे गया, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ताकत आई, मैंने एक एक दोनों हाथों से दो दो को पकड़ के मैंने उठाया, और किसी तरह से नहर की साइड को मैं पकड़ता था और उन लोगों को बाहर निकालता था। बाहर निकाल के उनके पेट से पानी निकालता था, फिर उनको CPR देता था। और बोले तब तक वहां पर एम्बुलेंस आ गई थी, और उसके बाद एम्बुलेंस से उन लोगों को लेके ये लोग जाना शुरू कर दिए। सो लाइक दिस ही ऑलमोस्ट सेव अराउंड 15 लोगों को इसने बाहर निकाला। गॉड। और उसके बाद 15 लोगों को बाहर निकाला, वो सारे लोग हॉस्पिटल चले गए। और उसके बाद बोले मैंने देखा कि मेरा पैसा कहाँ रखा था। फॉर्चुनेटली एक आदमी उसका पैसा लेके कहीं घूम रहा था, तो उसने लिया और चला गया। एंड सेकेंड इज ही गोज टू हिज विलेज। वहां पे पता चला कि 4 लोगों की डेड बॉडीज जल रही थी, और उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, एंड माहौल काफी खराब था। तो उसने पूछा क्या हुआ, बोले ये 4 लड़के वो हैं जो नहर में थे वो मर गए, लेकिन बोले कोई वहां पर लड़का था उसने सारे लोगों को निकाल लिया था, उसमें 4 तो मर गए लेकिन 11 लोग बच गए। सो नाउ इमेजिन दिस बॉय सेव्ड 11 यूथ, जो कि ऑलमोस्ट सब लोगों ने हिम्मत हार गए थे। कोई भी आसपास का लोग उनको नहीं बचा पा रहा था, जो लोग बचाने जा रहे थे वो भी डूब जा रहे थे। बट विद द ट्रेनिंग एंड विद द माइंड सेट सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड, ही कुड सेव दोज 11 यूथ। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वन यूथ। एट द सेम टाइम आप अगर देखें डिजास्टर के टाइम पे जहां भी NDRF और SDRF बाकी की जो भी राहत वाली फोर्सेस जाती हैं, वहाँ कितने हजारों लाखों लोगों को बचाया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट, एंड द क्रेडिट गोज टू द ट्रेनिंग पार्ट, क्योंकि ट्रेनिंग अगर नहीं है तो यू आर सिंपली लैम्डड, खड़े हुए वहां पर आप तमाशा ही देखेंगे। जैसे मैंने उस युवक को पूछा कि भाई बाकी के लोग क्या कर रहे थे जो वहां पर खड़े होते, बोले सर कुछ भी नहीं कर रहे थे, खड़े होके वो लोग वीडियो बना रहे थे, और मैं जो काम कर रहा था उसको भी वो लोग ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे। So that is how the situation is. Sir, drawing from what you just said, I think it's important that you give a message to the public कि जब disaster होता है या you can think of some specific scenario कि वीडियो बनाने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं। Basically,
आप जब स्पेसिफिक पॉइंट को देखें तो जब फ्लड आती है तो फ्लड के टाइम पे हम बहुत सारे लोगों को फौरी इलाज बताते हैं। जैसे वाटर बॉटल है, आप वाटर बॉटल को अगर दो रस्सी से बांध लेंगे तो आपके लिए लाइफ सेवर का काम कर सकती है। खाली टिन है, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप ट्यूब को यूज कर सकते हैं। और आप जो ऑयल के कैन होते हैं, प्लास्टिक के कैन, उनको आप यूज कर सकते हैं, आप नारियल को आप यूज कर सकते हैं। सो इन रियल लाइफ जब डिजास्टर हुआ है, जब फ्लड की सिचुएशन आजकल अचानक से आप देखिए बहुत सारी जगहों पे हो जा रही है। विजयवाड़ा में फ्लड आ गया, चेन्नई में फ्लड था, असम में फ्लड था। मतलब अभी अचानक से जो बारिश होती है, सो आर सिटी एंड आर इंफ्रा इज नॉट रेडी टू कोप अप दैट मच ऑफ द वाटर इन ए शॉर्ट टाइम। तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास में आपके आसपास में जो चीजें हैं उनको यूज करके आप अपनी लाइफ बचा सकते हैं बेसिकली। सर, कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है? ऑफ कोर्स एनडीआरएफ इज डूइंग एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब. हाउ शुड द कम्युनिटी सपोर्ट एनडीआरएफ टीम्स व्हेन दे आर वर्किंग? बेसिकली कम्युनिटी के लिए हम लोग एक तो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं रेगुलरली। ऑल अवर बटालियंस आर कंडक्टिंग कम्युनिटी अवेयरनेस प्लान, जहाँ की हम लोगों के बीच में जाते हैं और उन लोगों को जाके वेरियस तरीके बताते हैं कैसे लोगों की लाइफ सेविंग की जाए, उस समय कैसे टीम बनाई जाए, कैसे एक सेंट्रल रिस्पांस बनाया जाए। आर एकेडमी इज बेसिकली गिविंग द ट्रेनिंग टू द सिविल डिफेंस पीपल ऑल्सो। एनजीओ के लोग भी आते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी आते हैं, उनको हम पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं। साथ साथ हमारी जो बटालियन है, इवन हमारी जो एकेडमी है, वी गो टू द स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स। एनसीसी के लोगों को हम सिखाते हैं, एनएसएस के वॉलंटियर्स को हम सिखाते हैं। सो आर आउटरीच प्रोग्राम्स आर ऑलवेज देयर। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा मानना ये है कि जब तक कम्युनिटी का लास्ट पर्सन जो वहां पर उस समय अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, ही इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अगर उसको ये सारी चीजें पता है तो वो डैमेज को बहुत कम कर सकता है। बिफोर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और एनी फोर्सेज रीचेज देयर, वो 90% लॉस को कम कर सकता है। जैसे अगर फ्लड आया तो पहले से उनको पता है कि कम्युनिटी में हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, कौन सी सेफ जगह पर होगी जहाँ सारे लोग इकट्ठे होंगे, कहाँ पर हमारा खाने का सामान रखा जाएगा, क्या हमारा अल्टरनेट कम्युनिकेशन का साधन होगा। दूसरा, अगर हमारे एरिया का कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है तो दूसरी जगह का हमारे पास कौन कौन से नंबर होंगे, इंपॉर्टेंट नंबर होंगे। ये सारी जो ड्रिल है स्टार्टिंग में ही जब हम लोग डेवलप कर लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ एनी प्रॉब्लम, वेदर इट्स ए लैंडस्लाइड और द डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, तो दे आर नॉट सिंपली कि अभी क्या करें, अभी तो भगवान के भरोसे रहने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल. यस, So that state of preparedness can become a very big asset. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक गॉड, आई थिंक 2005 में जब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे मतलब स्टेप लिए हैं जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, और सभी लोग अपने लेवल पे जो काम कर रहे हैं, लोगों को एक्विप कर रहे हैं। आपने देखा होगा सुपर साइक्लोन में कितने लोगों की डेथ हुई थी, सुनामी में कितने लोगों की डेथ हुई थी, बट उसके बाद में जितने भी साइक्लोन आए हैं, नाउ गवर्नमेंट्स आर एंड कम्युनिटी इज टोटली रेडी। उनको पता है पहले से, स्टार्टिंग में वार्निंग आ गई तो इवैक्यूएशन करके कहाँ जाना है, सेफ जगहों पर कैसे जाना है। और सबसे बड़ा पार्ट ये है कि प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं होती कि एक बार डिजास्टर हो गया उस समय लोगों को बचा लिया गया, लेकिन डिजास्टर के बाद में जो सेकेंडरी पार्ट होता है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उनका घर चला गया, उनके फैमिली मेंबर चले गए, अब उनके साथ में कैसे डील करना है। जो मानसिक डिजास्टर है उसको डील करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम अपने लोगों को वो भी ट्रेनिंग दिला रहे हैं कि कैसे हम उस समय रिस्पॉन्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि हम लोग खाली लोगों को निकाल तो लें, लेकिन बाकी का सपोर्ट अगर हमने नहीं दिया तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। Psychosocial यस, support, which you're talking about. साइको सोशल तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अपनी एकेडमी में ये शुरू किया था। 3 डेज का हम लोगों ने अपनी फैकल्टी को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया था। एंड आई एम श्योर कि विद दिस प्रोग्राम एंड अदर प्रोग्राम्स
बाकी के लोगों को भी हम लोग ट्रेनिंग दे सकेंगे और इंडिविजुअल को वो माइंडसेट भी दे सकेंगे कि हाउ टू डील विद द ह्यूमन बीइंग दोज हु आर इन द डिस्ट्रेस, किस तरह से हम लोग उनके साथ एम्पैथी शो करके और उनको लोगों से कनेक्ट कर सकें। सबसे बड़ा पार्ट ये है, हमने अपना काम कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी सरकारी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी ऐसी हैं जो कि इक्वली उनको फायदा दे सकती हैं, लेकिन वो जो विक्टिम है उस समय उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, बिकॉज ही इज अ ब्लैंक और शी इज अ ब्लैंक, उन्होंने अपने नियर एंड डियर वन को खो दिया है। तो वहां उस मौके पर उनके साथ में हम खड़े होके उनको वो सपोर्ट दे सकें, उनको बोल सकें कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, वो तो है, नुकसान हुआ है, ये लोग गए हैं, अभी हमें आगे का क्या देखना है, आगे हमको कौन मदद कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, Right. वहां तक हम उनको पहुंचा सकें तो मेरे को लगता है कि ये एक कंप्लीट पार्ट होगा। Yes, I think that is a very beautiful thing to do because, especially coming from the background of the forces, developing empathy, compassion, and this approach towards the people they are rescuing must be very difficult also, I think, in some ways. दिस इज अ न्यू स्किल बेसिकली, Yes, बिकॉज absolutely. इन फोर्सेस बोलते हैं ना कि दुश्मन पे कभी भी दया नहीं दिखाने का है। Exactly. Your role as the director in NDRF. Can you just briefly tell us a little bit about that? Role in the director as NDRF Academy is basically we design the courses, और जो कोर्सेज हम लोगों को हेडक्वार्टर से मिले होते हैं उन कोर्सेज को हम सक्सेसफुली रन करें, पार्टिसिपेंट जो आते हैं उनको पूरा वैल्यू मिले, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उस पर हम वर्क कर सकें, उनको ना केवल हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दें बल्कि उनके माइंडसेट के अंदर भी वर्क करें। सो व्हेन दे आर going back, they are simply touch, move, and inspire. I always use this word. They are equipped to deal with any kind of the disaster, and they can do their work skillfully. और अपने जो भी कौशल है उसके अंदर उनको मास्टरी हो, और यहाँ से जब वो जाएं तो कभी डिजास्टर हो तो उनको ये सिखलाई जब याद आए और उस वक्त अप्लाई कर सकें, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। Wonderful. So amazing. For the common citizen to understand, sir, exactly what happens when the NDRF gets information about, let's say, a flood. How exactly quickly does the communication happen? And, for us to understand. नॉर्मली मैम हमारी जो बटालियंस हैं या रीजनल रिस्पांस सेंटर्स हैं, दे ऑल हैव द कंट्रोल रूम एंड दे आर हैविंग द न्यूज चैनल। जैसे हमारे अधिकतर हर जगह पे तो एनडीआरएफ या फोर्सेस नहीं हो सकती, तो मीडिया इज द फर्स्ट वन टू गिव द रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले फ्लैश न्यूज आनी या ब्रेकिंग न्यूज आनी शुरू हो जाती है, या कहीं कुछ हुआ तो वो उस डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम इन्फॉर्म कर देता है कि हमारे यहाँ अचानक से बाढ़ आ गई है। हमारे यहाँ अचानक से बाढ़ आ गई है, आप तुरंत आइएगा। तो हमारी टीम इमीडिएटली द मोमेंट दे गेट द इंफॉर्मेशन दे मूव, इमीडिएटली दे मूव। कितना बाद में रिस्पॉन्स ऑफ टाइम कोर्स होता है? कितना होता है रिस्पॉन्स टाइम? दे आर ऑलवेज इन रेडी पोजीशन, उनके कपड़े, उनका बैग, ट्रक लदा हुआ होता है सामान से। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई विद इन 20 मिनट के अंदर हमारी टीम निकल जाती है, विद इन 20 मिनट के अंदर। वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि अभी तो मैं बाजार गया हूँ सामान खरीदने के लिए, अभी मेरी जगह दूसरे को भेज दो। द टीम्स आर ऑलवेज इन द रेडी पोजीशन, ऑलवेज इन रेडी पोजीशन। गाड़ी खड़ी हुई है उनके लिए, सामान लदा हुआ है, जैसे ही मैसेज आया तुरंत गाड़ी में बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो। तो विद इन 20 मिनट मैंने बोला है, हो सकता है 20 मिनट से जल्दी भी निकल जाए, बट दे मूव इमीडिएट। उनके बैग में सामान भी होता है कुछ खाने पीने के लिए, सो दैट दे कैन सस्टेन, वाटर भी होता है उनके पास में, एंड दे मूव क्विकली। दैट इज व्हाट आवर टारगेट टाइम। उसके बाद में ऑफ कोर्स रिक्विजिशन आती है कि नहीं इसकी सीवियरिटी इतनी है, अभी क्या स्टेटस है लॉस का, आपको ज्यादा टीम चाहिए, वो सब बात का बात है, बट इनिशियल टीम हमारी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है। So, sir, briefly, let's talk a little bit about your experience in the narcotics before we conclude this exam. A small bit about that.
In Narcotics Control Bureau, I was for 7 years. Of course, एनसीबी का जो बेसिक वर्क है वो ब्यूरो फंक्शन है, Mhm. साथ साथ इंटेलिजेंस डेवलप करना, फिर ऑपरेशंस करना, कन्विक्शन करना, प्रीकर्सर कंट्रोल करना, दोज वर सम फंक्शंस। जहां तक लोगों को पकड़ने का सवाल है, उसके दूसरी साइड में ये भी है कि आखिर हम उसकी सप्लाई को कट करने के बाद डिमांड को कैसे रिड्यूस कर सकें। एट द हम्म, एंड ऑफ द डे तो ड्रग इसलिए बिक रहा है क्योंकि लोग खरीदने वाले हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम सबको बंद भी कर देंगे, बट सोसाइटी में लोग फिर भी ड्रग चाहते हैं, तो वो कोई ना कोई उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। जैसे कुछ स्टेट्स ने गुटखा बैन कर दिया, बट गुटखा तो बैन बिकना बंद हो गया, लेकिन लोगों ने टैबेको और सुपारी को मिक्स करके खाना शुरू कर दिया। सो इट्स नॉट ए सोल्यूशन। सो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उस पर काम कैसे करें। तो वी स्टार्टेड विद द एंटी नारकोटिक्स क्लब, कि हर स्कूल और कॉलेज जो है अपने यहाँ एंटी नारकोटिक क्लब खोले, और उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं उनको हम अवेयर करें कि हाउ ड्रग इज डिस्ट्रॉइंग योर हेल्थ। लेटर ऑन आई रियलाइज कि एंटी नारकोटिक्स क्लब हम लोगों ने खोल तो दिए, लेकिन उनमें सक्सेस हमको बहुत ज्यादा नहीं मिली। दिखाने के लिए एक दो प्लान उन्होंने प्रोग्राम कर दिए, हम्म, और ये प्रोग्राम जो है उन्होंने बोला हमने 2 साल पहले ये प्रोग्राम किया था, और हमने अज्यूम कर लिया कि वो प्रोग्राम करने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो और स्टडी हम लोगों ने की, देन वी क्रिएटेड ए अफर्मेटिव अप्रोच, वी कॉल्ड इट द हेल्दी कैंपस। हम्म, क्योंकि हमारी जो स्टडी थी वो हमने देखा जो गड़बड़ बच्चे हैं जो कि स्मोकिंग में या फिर अल्कोहल में जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते टेक्निकली। 5 से 6% हम लोगों को दिखते थे उस समय जब कॉलेज में आते थे। और जो बहुत अच्छे बच्चे होते थे उनका नंबर भी हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं दिखता था, जो कि एकदम घर से स्ट्रिक्ट हैं कि कुछ भी नहीं खाओगे ऐसा गलत चीज, स्पोर्ट्स में रहोगे, खाने पीने का ध्यान रखोगे। सो कम वॉट में आप उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे। सो वो 5-6% बच्चे हो गए। अब रहे वो बच्चे जो कि फैन सिटर हैं, उनको अगर जो गड़बड़ बच्चे हैं वो अपनी साइड में लेके जा सकते हैं थ्रू पीयर प्रेशर, या भाई ट्राई कर ले एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, या वो बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहें, या फिर वो एक कंपनी ज्वाइन करना चाहें, या उनका अलग स्ट्रेस हो, मैनी फैक्टर में भी देयर। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो उनको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते, नॉर्मली यही देखा गया है। सो वी थॉट व्हाई वी शुड नॉट स्पेंड मोर टाइम, इन्हीं बच्चों पे हम ध्यान दें, जिससे कि ये बच्चे ड्रग में ना जाके हेल्दी एक्टिविटीज में जाए। सो वी क्रिएटेड ए 7 पॉइंटर प्रोग्राम। इन 7 पॉइंटर प्रोग्राम में हमने बोला जैसे ही स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे सबसे पहले हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओके। और उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर बच्चों को बताएंगे कि व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ द ड्रग, हाउ इट इज हार्मिंग अवर कंट्री, नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देती है, हाउ यू कैन बी बुक्ड अंडर एनडीपीएस एक्ट, जिससे आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपकी हेल्थ एंड सोसाइटी के लिए आप क्या है, कुछ भी नहीं है। दूसरा पार्ट कि चलो ठीक है, अब इस टॉक से बच्चे इंस्पायर तो हो गए, उनको समझ में तो आ गया ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मेमोरी तो बहुत शॉर्ट होती है, कल फिर भूल जाएंगे, कल बार बार तो हम बताने नहीं आ रहे। तो हमने कहा कि अब उसको हम एक पूरा की पूरा प्रोग्राम बना देते हैं कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर उसके हेड होंगे, एक फैकल्टी नॉमिनी होगी, और बच्चों की एक कमेटी बना देते हैं, हेल्दी कैंपस कमेटी। और वो कमेटी क्या करेगी, पूरे साल का एक कैलेंडर बनाएगी। इस महीने में हम ये स्पोर्ट्स मीट करेंगे, ये गेम करेंगे, उसके अलावा कोई योगा का कैंप कराएंगे, मेडिटेशन का कैंप कराएंगे, फूड से रिलेटेड कुछ वर्क करेंगे, देन सोशल कॉन्शियसनेस रिलेटेड एक्टिविटीज उनके करवाई। अभी स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है तो आप अपने एरिया की देखभाल करोगे, ग्रीन मिशन चल रहा है तो आप प्लांटेशन ड्राइव करोगे, सोसाइटी के बीच में जाओगे। सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ द प्रोग्राम, रोड सेफ्टी के पार्ट में जाओगे। सो बच्चे को बिजी रखना है। वी से कि जब आप सोसाइटी को कुछ देते हो तो आपको खुशी मिलती है, किसी गरीब बच्चों को पढ़ाओगे, डू समथिंग लाइक दिस। फिर थर्ड हमने उनको बोला कि जो बच्चे ड्रग करते हैं उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, उनको लगता है मेरे में कुछ कमी है, मैं कूल दिखूंगा। तो यानी सेल्फ स्टीम वाला इशू है ये। तो सेल्फ स्टीम से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करेंगे। फिर क्या होता है, एग्जाम जैसे आ रहे होते हैं तो बच्चे बोलते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस क्यों क्या हो गया, क्योंकि पूरे टाइम तो उन्होंने टाइम दिया नहीं पढ़ाई के लिए।
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड उनके लिए एक्टिविटी करेंगे। एक और इश्यू हम लोगों ने देखा कि बच्चे लोग रात रात भर पढ़ते हैं, कुछ टैबलेट लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेते हैं। अभी आज के पेपर में भी मैंने देखा एक लॉ के बच्चे की डेथ हो गई, उसको उसके रूम के अंदर, पुणे के अंदर, कि उसने प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ली हुई थी, एग्जाम्स पास आ रहे थे। अब जब दवाएं ज्यादा लेते हो तो वो भी हार्मफुल है। सो हमने उसको बोला कि भाई आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छी होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड टॉक करा देंगे। एंड फाइनली ड्रग फ्री लाइफ। सो अब कितनी एक्टिविटी हो गई, तो पूरे साल वो बच्चे बिजी हैं और फाइनली हम उनको एक सर्टिफिकेशन देंगे, आपने ये काम किए। डायरेक्टर का और कमिश्नर ऑफ पुलिस या कलेक्टर जो भी है उनके साइन का हो जाएगा, जो कि उनके वर्क में भी उनकी हेल्प करेगा कि ये बच्चा क्लीन है, इस बच्चे ने वॉलंटियरिंग की है, अच्छा काम किया है। That's और good. सबसे बड़ी बात, उसको इन्वॉल्व रखा है। हमने बोला भाई शैतान को इन्वॉल्व करो। बोलते हैं ना, जिन्न को हमने निकाला, बोले बता मेरे आका मैं क्या करूं। अब उसको तो आप क्या बोलोगे, तो उसको जो समझदार आदमी था बोला भाई एक काम कर, पेड़ पे चढ़ उतर यही काम करता रहे। बट वो प्रोडक्टिव नहीं है ना। हेल्दी कैंपस के थ्रू हमने उसको प्रोडक्टिव वर्क कराए। तो लाइक दिस मोर देन 1000 स्कूल कॉलेजेस में ये प्रोग्राम हम लोगों ने पूरे कंट्री में किया। स्टिल इसका वेबसाइट भी हमारे पास में है, healthycampus.in। एनीबडी कैन लॉग इन, टेक द प्रोग्राम, कंटेंट पूरा ले सकता है। ऑफ कोर्स जहाँ पकड़ने की बात थी वो तो की, वो तो हमारे केसेस थे ही थे। बट द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी जॉब वाज दिस। एंड देन अनदर वाज द कैपेसिटी बिल्डिंग। हमने बाकी सब एजेंसीज को ट्रेंड किया कि नहीं भाई हम नहीं करें काम, बाकी के सब करो। एनजीओज को हमने ट्रेन किया, सिविल सोसाइटी को ट्रेन किया। तो इट वाज वेरी फुलफिलिंग मैम, वेरी फुलफिलिंग। आई थिंक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, चाहे वो ड्रग्स में हो, चाहे इन एनी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक. यस। So, would you like to say something to the audience before we close this Ek Samvad with you? A message? यस, तो आई वुड लाइक टू से टू द ऑडियंस, जिसमें मेरे को लगता है हमारे ऑडियंस में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो हमारे यूथ की है। यूथ जो है, एक तो अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखे। जैसे आजकल हम लोगों को सिखाते हैं सीपीआर और लाइफ सेविंग स्किल्स, और अनटाइमली लोगों की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक एंड मेनी अदर थिंग। दूसरा, घर का खाना खाएं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तीसरा, हर दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे आपका स्कूटर है, कार है, आप डेली उसकी सफाई करते हो, मंथली मैकेनिक पे लेके जाते हो, व्हाट यू आर डूइंग फॉर द बॉडी। आई एम श्योर जब आप एक पावरफुल सिटीजन बनेंगे तो आप अपने आसपास नेचर का भी ध्यान रख पाएंगे। नेचर का जब ध्यान रखेंगे, साथ साथ आपको जो ट्रेनिंग मिली होगी, तो कैसा भी डिजास्टर क्यों ना हो, वेदर इट्स ए फिजिकल डिजास्टर और द मेंटल डिजास्टर, यू विल बी रेडी टू फेस दिस। So thank you very much for inviting me for this talk, and thank you so much. Thank you for being on Ek Samvad, sir. I think the information you have shared is very valuable. And of course, thank you so much for your services to the nation. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much.